So we'll start with breathing and exchange of gases. Okay, now what is breathing? First of all, and gases, to you all are aware. What is breathing? Breathing is basically inspiration and expiration. It is joint mixture of inspiration and expiration. So breathing, we have definition: the process of exchange of O2 from atmosphere with CO2 produced by cells is called as breathing. The process of exchange of O2 from atmosphere with CO2 produced by cells is called as breathing. Okay, जो भी एटमॉस्फेयर में CO2 और O2 है उसका एक्सचेंज बॉडी के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग. Respiratory organs, it depends on the habitat in the body organization. It depends on habitat and body organization. Example, animals and उसके organs दिए हैं. पहला है porifera. Now poriferans are aquatic organisms. Animal kingdom की opening होती है porifera से, so they respire or they breathe with the help of body surface, general body surface. If you will talk about insect, then trachea plays a major role in exchanging the gas. अब हमने कॉकरोच चैप्टर खत्म कर दिया तो आपको याद होगा उसके अंदर ट्रैकिया स्पिरैकल्स थे. स्पिरैकल्स के बाद ट्रैकिया था, फिर ट्रैक्यूल्स था और फिर डायरेक्ट टिश्यू था. सो इंसेक्ट्स के अंदर ट्रैकिया मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है. प्लीज डोंट राइट देयर एज लंग्स. नाउ थर्ड, एक्वाटिक इंसेक्ट. एक्वाटिक इंसेक्ट और मोलस्का. मोलस्का एक डिफरेंट फाइलम है और एक्वाटिक इंसेक्ट इंसेक्टा ग्रुप का एक सब सब क्लास है. तो उसके अंदर वो दोनों भी किससे रिस्पायर करते हैं? गिल्स के थ्रू. दे रिस्पायर बाय गिल्स. नेक्स्ट स्कॉर्पियो. स्कॉर्पियो जो है वो बुक लंग से रेस्पायर करता है. फिशेस गिल्स. एम्फीबियंस वाया स्किन, जिसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं, गिल्स, लंग्स. ओके, नेक्स्ट रेप्टाइल्स, दैट इज लंग्स. बर्ड्स लंग्स. Birds and mammals lungs. Okay, so this is all the respiratory organ. You may get matched the pair. Okay, let us move forward. Human respiratory system, it consists of respiratory passage and respiratory organ. Respiratory passage and respiratory organ, it is made up of two parts. Human respiratory system. Now respiratory passage, if we will talk specifically, it is a passage that takes air from outside to the lungs. जो बाहर की एयर को इनसाइड लाती, आउटसाइड से इनसाइड लाती है. इट कंसिस्ट ऑफ नेजल कैविटी, इंटरनल लेयर्स, pharynx एंड larynx. देन ट्रैकिया. ये पाथवे एज इट इज ही करना पड़ेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते कि हैphazardly हम कोई भी ऑर्डर में लिख दे. इट शुड फॉलो करेक्ट सीक्वेंस. सो नेजल कैविटी फर्स्ट, देन इंटरनल लेयर्स, देन pharynx, then voice box larynx, then trachea, then first bronchi या 1 degree bronchi, 2 degree bronchi, 3 degree bronchi, terminal bronchiole, initial bronchiole, alveolar duct and alveolar sac. Okay, at the end alveolar sac and alveolar duct, उससे पहले initial bronchioles. Okay, now this is the basic diagram. एपिग्लॉटिस, आपको पता है ये कार्टिलिजिनियस कवरिंग है जो ईसोफेगस और ट्रैकिया को कवर करती है. एपिग्लॉटिस के बाद जस्ट है लैरिंग्स, देन है ट्रैकिया, एंड देयर यू कैन सी सी शेप पार्शियल cartilage. C shape partial cartilage. This, it is a hyaline cartilage or bluish cartilage. Okay, and
we'll talk further. You can see here the diagram. Basically, trachea divides at the this level into the lungs. You can see this. Trachea divides at this level into the lungs. This division is called as T5th. T stands for thoracic vertebra. So this division occurs at what level? T5. T5th thoracic. तो thoracic लेवल पे ये डिवाइड होता है और बाइफरकेट करके लंग्स में पेनिट्रेट करता है। जिस जगह से लंग्स में वो पेनिट्रेट करेगा दैट विल बी कॉल्ड एज हाइलम। तो लंग्स के हाइलम से ट्रैकिया जो है दो हिस्सों में डिवाइड होता है या बाइफरकेट होता है। दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज T5, thoracic vertebra का फिफ्थ नंबर। नाउ further you can see primary bronchi, secondary bronchi, tertiary bronchi, pulm, then one to initial terminal and then alveolar sac. Okay. Now between the lungs, you can see here the lungs. Between the lungs, you can see here lies two membrane. Okay, that are called as pleural membrane. Now there are two membrane. I will zoom it. There are two membrane. This outer membrane is called parietal pleura, and this outside one is called as visceral pleura. तो दो pleura है and that yellow colored structure in between both the pleura is pleural fluid. Okay, तो लंग्स के एकदम चिपक के एक लेयर है जिसको विसरल प्लूरा बोलेंगे। प्लूरा इज टर्म यूज फॉर लंग्स एंड उससे थोड़ा सा दूर है पैराइटल प्लूरा। दोनों के बीच में एक फ्लूइड फ्लो करता है दैट इज कॉल्ड एज प्लूरल फ्लूइड। उसका फंक्शन क्या है? शॉक एब्जॉर्ब करता है लंग्स का, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है सेल्स को और वियर एंड टेयर देखता है। ओके, तो दीज आर फ्यू फंक्शंस ऑफ द प्लूरल फ्लूइड। एंड ये जो प्लूरल फ्लूइड है उसका जो प्रेशर होता है वो जनरली निगेटिव होता है। द प्रेशर जनरली इज निगेटिव एंड it is due to this because of which lungs does not collapse। हमारा lungs collapse होने से बचा रहता है क्योंकि इसमें निगेटिव प्रेशर होता है। ओके, now moving further, C-shaped cartilaginous ring covers the structure till terminal bronchiole। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, this is C-shaped rings, you know। This is C-shaped rings and it is present, you know, you can see डायग्राम के अंदर भी हो जा रहा है ऐसे। तो इट इज सीन टिल टर्मिनल ब्रोंक्यूल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल मतलब यहाँ तक, और उसके बाद एल्वियोलर डक्ट आ जाता है तो वहां नहीं आता है। ओके, नाउ लंग्स पेयर्ड स्ट्रक्चर विथ कॉमन ऑब्लिक टिश्यूज एंड एक्स्ट्रा हॉरिजॉन्टल टिश्यू। लंग्स जो होते हैं पेयर्ड और स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें कॉमन ऑब्लिक फिशर होता है एंड एक्स्ट्रा हॉरिजॉन्टल फिशर होता है राइट लंग में। कवर्ड बाय टू प्लूरल मेम्ब्रेन विसरल एंड पैराइटल। ओके, अब जो मैंने ऑब्लिक फिशर की बात की तो मैं एक लंग्स का डायग्राम ड्रॉ करूंगा। दिस इज लंग। इसमें ऐसे हेड टू एंड रीजन पे एक स्ट्रक्चर है, आप ऐसा भी कर सकते हो। ऐसा एक स्ट्रक्चर है जो डायगोनली तो कट करता है बट एंड्स को कट नहीं करता है, इसकी वजह से वो पार्शियली ही ओपन हो सकता है। तो इससे हार्ट लंग्स जो है दो हिस्सों में बन जाता है।
एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रीजन। ये दोनों भी लंग्स में कॉमन है। मान लो ये राइट लंग्स है और ये लेफ्ट लंग है। लेफ्ट लंग में ऐसा कार्डियक नॉच दिखता है क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट के साइड क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट। दोनों के अंदर ऑब्लिक फिशर कॉमन है ऐसा। तो दोनों के अंदर कौन सा फिशर कॉमन है, ऑब्लिक। बट राइट लंग में एक और फिशर है जिसकी वजह से वो एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर रीजन में डिवाइड हो जाता है। एंड दिस इज वाई हार्ट राइट लंग्स के अंदर थ्री रीजन होते हैं, लेफ्ट के अंदर दो। इसमें सिर्फ एंटीरियर पोस्टीरियर, इसमें एंटीरियर, मिडियल और पोस्टीरियर। ओके, तीन रीजन होते हैं। तो क्यों, क्योंकि ऑब्लिक फिशर दोनों में कॉमन है, बट जो मेन फिशर है हॉरिजॉन्टल वो सिर्फ राइट लंग में प्रेजेंट होता है। इट इज एब्सेंट इन लेफ्ट लंग, जिसके कारण राइट वाले में एक और डिवीजन होने के कारण थ्री रीजन्स बन जाते हैं, जबकि वहां पे नहीं बनते। ओके, दिस इज व्हाट यू वी मस्ट नो। ओके, तो ऑब्लिक दोनों में भी है, राइट एंड लेफ्ट, whereas हॉरिजॉन्टल वाला सिर्फ राइट में है। Covered by two pleural membrane, visceral and parietal. Now, mechanism of breathing. Inspiration is an active process, and how we inspire or how air is travel inside, and how air is excrete outside. We will see from this flow chart or graph. Now, there is a difference. आपको पता होगा, ये हमारा नोज है। मान लो यहाँ से मैंने ऐसे दोनों लंग्स बना दिए। नाउ ये बॉडी के अंदर का है, इसको हम बोलते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। और ये जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, दो टाइप के ये हैं। एक है जो एयर हमारे लंग्स के अंदर पड़ी है, दैट इज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। एंड एक जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ अगर हमें सांस को अंदर लेनी है, इंस्पिरेशन करना है, जो कि एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस इन द सेंस इट रिक्वायर्स एटीपी। विदाउट एटीपी इट कैन नॉट फंक्शन। तो अगर हम एक्टिव प्रोसेस की बात करें या इंस्पिरेशन प्रोसेस की बात करें, तो उसके अंदर वी नीड टू फिक्स वन क्राइटेरिया। वी नीड टू फिक्स वन क्राइटेरिया। द क्राइटेरिया इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बड़ा होना चाहिए इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर से। मतलब अगर एयर को बाहर से अंदर लाना है तो इंटरनल का जो प्रेशर है वो कम होना चाहिए एटमॉस्फेरिक या एटमॉस्फेयर के कंपेयर में। जबकि यूजुअली दोनों का प्रेशर सेम होता है जब रेस्टिंग स्टेज पे रहते हैं या जब इंस्पिरेशन नहीं होता है। अब फ्रॉम दैट स्टेबल पोजीशन हमें उसको इंटरनली कम करना है। अब इंटरनली प्रेशर हम दो तरीके से कम कर सकते हैं। या तो हम प्रेशर थोड़ा सा निकाल दें। अब वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम इंस्पिरेशन से पहले एयर फिल आउट नहीं कर सकते। प्लस हमारा जो लंग्स है या थोरेसिक कैविटी है वो एक पूरा वैक्यूम जैसा है जिसमें से लीकेज बहुत रेयरली पॉसिबल है। तो अब हम लोग प्रेशर तो एक्सक्रीट नहीं कर सकते, पर हम दूसरी चीज से प्रेशर को अफेक्ट कर सकते हैं। वो ये है कि आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा होगा, उसमें थर्मोडायनेमिक्स में, केमिस्ट्री में, दैट वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ओके, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो अगर मैं वॉल्यूम में चेंज कर सकता हूँ, हमारी जो थोरेसिक कैविटी है उसके अंदर हम वॉल्यूम में चेंजेस कर सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ वेरियस मसल्स। नाउ अगर हम वॉल्यूम में चेंजेस कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली
अगर हम वॉल्यूम में चेंज कर रहे हैं तो प्रेशर पे अफेक्ट होगा, और हमें एट द एंड इंस्पिरेशन के लिए क्या करना है, जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है, जो अंदर बॉडी के अंदर है, जिस जो लंग्स में है, उसको हमें कम करना है एटमॉस्फेयर के कंपेयर में। अब व्हाट वी कैन डू, अगर हम वॉल्यूम बढ़ा दें, तो क्योंकि वॉल्यूम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से प्रेशर कम हो जाएगा, और हमें वही तो करना है, प्रेशर ही कम करना है, ताकि एटमॉस्फेरिक एयर ज्यादा हो जाए और एयर अंदर की तरफ आ जाए। तो यहाँ पे हमें बॉयल्स लॉ ही यूज करना है। ओके, लेट अस स्टार्ट। ओके, व्हाट वी गोना डू, नो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमें इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर से कम करना है, एटमॉस्फेयर का बढ़ाना है। व्हाट वी विल डू, दे वी हैव फोर टाइप्स ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन द thoracic cavity. The first one is diaphragm. We all know about diaphragm. एंड आई विल शो यू, ये रहे हमारे लंग्स। लंग्स के ठीक नीचे ऐसा एक मसल होती है डायफ्राम, ये मैमल्स के अंदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो दिस इज कॉल्ड एज डायफ्राम। ओके, एंड बिटवीन द रिब्स, दिस आर आवर रिब्स, इसके बीच में से मसल्स होती है, एक मसल बाहर से अंदर की तरफ जाती है और एक अंदर से बाहर की तरफ जाती है। जो बाहर से अंदर की तरफ जाती है इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, EICM। और जो अंदर से बाहर की तरफ जाती है उसको हम बोलते हैं IICM, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। जो बाहर से अंदर की तरफ जाती है उसको हम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं, और जो अंदर से बाहर की तरफ जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। और एक और मसल्स होती है जो एब्डोमेन के फ्रंट सरफेस पे एब्डोमेन के लगी रहती है। आप जब भी डीप ब्रीदिंग लेंगे तो आपके स्टमक के पास डिप्रेशन पैदा हो गया, या वहां पे स्टमक जो है वो पीछे की तरफ जाएगा, तो वो जो मसल्स है वो ड्यू टू एब्डोमिनल मसल्स है। तो ऐसे चार मसल्स हैं, पहला है डायफ्राम, जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। फिर रिब्स के बाहर की तरफ से अंदर जाने वाली एक मसल होगी जिसको EICM बोलेंगे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। फिर एक अंदर से बाहर की तरफ निकलेगी उसको इंटरनल इंटरकोस्टल मसल बोलेंगे, और दोनों के बीच में एक ऐसा ट्रायंगुलर स्पेस बनता है जो वो लोग यूज करते हैं फॉर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। नो, नो, इफ यू विल टॉक अबाउट, अब हमारे पास मसल्स क्लियर है तो वी कैन मूव फर्दर। डायफ्राम और EICM दो मसल्स हैं, दोनों भी अगर कॉन्ट्रैक्ट कर जाए तो डायफ्राम यूजुअली डोम शेप होती है ऐसी, डायफ्राम यूजुअली लंग्स के नीचे ऐसी होती है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाए तो वो ऐसी फ्लैट हो जाती है। तो पहले ऐसी थी अब ऐसी हो गई, तो यहाँ पे ऐसे इतना इंटर एक्स्ट्रा स्पेस बढ़ जाता है। ओके, और इतना स्पेस बढ़ने की वजह से हम उसे क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो डायफ्राम और EICM दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वॉल्यूम जो है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ जाता है। एंटीरियर पोस्टीरियर मतलब ऊपर नीचे बढ़ जाता है। लाइक पहले लंग ऐसा था क्योंकि उसके नीचे ऐसा डायफ्राम था, अब लंग जो है फ्लैट हो गया है बिकॉज उसके नीचे की मसल्स जो है डायफ्राम वो नीचे आ गई है। पहले डायफ्राम ऐसा था, अभी देखो कैसा हो गया। तो इतना एरिया डायफ्राम ने कांटेक्ट करके फ्लैट हो गया, जिसकी वजह से एरिया बढ़ गया। एरिया बढ़ गया तो जो जैसे ही थोरेसिक कैविटी में चेंज आएगा वैसे ही हमारा लंग भी उसी हिसाब से अडेप्ट कर जाता है। तो हमारे लंग का इस डायरेक्शन में, दिस डायरेक्शन,
ऊपर नीचे, जिसको हम एंटेरियर और पोस्टीरियर डायरेक्शन बोलते हैं, उसमें जो है वॉल्यूम बढ़ जाएगी एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन प्रेशर। ओके, तो दोनों मसल के कॉन्ट्रैक्शन से क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन वॉल्यूम इन एंटेरियर पोस्टीरियर एक्सिस इन डॉर्सोवेंट्रल। डॉर्सोवेंट्रल मतलब सामने और पीछे, एंटेरियर पोस्टीरियर मतलब ऊपर और नीचे। तो लंग्स की साइज बढ़ने की वजह से, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से, दोनों के साइज बढ़ने की वजह से कॉमनली क्या हो जाएगा, पल्मोनरी या लंग्स की वॉल्यूम बढ़ जाएगी। एंटेरियर पोस्टीरियर और डॉर्सल वेंट्रल दोनों का साइज बढ़ने की वजह से ओवरऑल पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ जाएगा या लंग का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। नौ, अब बॉयल्स लॉ हमें पता ही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम बढ़ा है तो वॉल्यूम जो है इनवर्सली, नौ दिस बॉयल्स लॉ, तो वॉल्यूम बढ़ा दिया हमने तो प्रेशर कम कर दिया। नो दिस प्रेशर डिक्रीज हैज लीड टू एयर रश फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू एयर। एयर कहाँ ट्रैवल करता है, हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन। पहले दोनों में बराबर था, अब हमने वॉल्यूम बढ़ाने की वजह से अंदर का प्रेशर कम हो गया, तो जिसकी वजह से बाहर का प्रेशर ज्यादा है, तो वहां की एयर बाहर से अंदर की तरफ आएगी। दिस इज कॉल्ड एज इंस्पिरेशन। और यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ाने के लिए दो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, पहला है डायफ्राम, दूसरा है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। दोनों भी एटीपी के हेल्प से ये कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव प्रोसेस। ओके, दिस इज इंस्पिरेशन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ाना है इंट्रापल्मोनरी से, तो दो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करा दो, जिससे दोनों का वॉल्यूम एक फिक्स एक्सिस में बढ़ेगा, डायफ्राम का एपी एक्सिस में और ईआईसीएम का डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में, जिसकी वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ेगा एंड इंस्पिरेशन होगा। इफ यू विल टॉक अबाउट एक्सपीरेशन, जो कि पैसिव प्रोसेस है, in that what we gonna do is atmospheric pressure is less than intrapulmonary pressure. Atmospheric pressure is less than intrapulmonary pressure. हमें यहाँ पे कौन सा सिचुएशन बनाना है कि एटमॉस्फेयर में एयर का प्रेशर कम हो जाए और अंदर ज्यादा हो जाए। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर गैस, वी आर जस्ट टॉकिंग द ओवरऑल एक्सपिरेशन। तो ओवरऑल एक्सपिरेशन में हमें देखो, इंस्पिरेशन में हमने एटमॉस्फेरिक एयर को बढ़ाया कंपेरेटिवली, बॉडी का कम किया ताकि एयर बाहर से अंदर आ पाए। अब हमें अंदर के एयर को निकालना है, तो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा करना होगा इंटरनल प्रेशर को। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर डायरेक्टली हम ऐड ऑन तो नहीं कर सकते, तो हम वॉल्यूम में फिर से चेंज करते हैं। वॉल्यूम अगर तुम छोटा कर दो तो अपने आप प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा और हमें एयर को बाहर निकालने में मदद मिलेगी। Now in expiration what we gonna do is एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम करना है इंट्रापल्मोनरी के कंपेयर में, जबकि इंस्पिरेशन में हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इंट्रापल्मोनरी प्रेशर से बढ़ाना था। तो ये चीज करने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम करने के लिए इंट्रापल्मोनरी प्रेशर के कंपेयर में, दो मसल्स जो पहले कॉन्ट्रैक्ट हुई थी उनका रिलैक्समेंट कराओ पहले। तो डायफ्राम जो है वो रिलैक्स हो जाएगी, ईआईसीएम जो है रिलैक्स हो जाएगी। दोनों के रिलैक्स की वजह से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दोनों के रिलैक्स होने की वजह से एक का एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम कम हो जाएगा और दूसरे का डोर्सोवेंट्रल जो ऊपर बढ़ा था, उन्हीं दोनों को कम करने के बाद क्या हो जाएगा, उसी एक्सिस में वॉल्यूम कम हो जाएगा। नाउ अगर वॉल्यूम कम होगा, इफ डिक्रीज इन वॉल्यूम इज डन, देन उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अगर कम कम हो जाए तो प्रेशर अपने आप बढ़ जाएगा एंड पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से एयर खुद ब खुद अंदर से बाहर की तरफ जाएगा, बिकॉज एयर ट्रेवल्स या एयर डिफ्यूज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया। तो इंटरनल प्रेशर ज्यादा है तो वो बाहर की तरफ फ्लो करेगा बॉडी के कंपेयर में, एंड इससे हमारी एक्सपिरेशन हो जाती है। तो दिस आर द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ओके, तो बेसिक में
दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी इंस्पिरेशन, दोनों मसल्स रिलैक्स करेंगी तो एक्सपिरेशन। ओके, यहाँ पे फिर मैंने कुछ एक्स्ट्रा मसल्स लिखी हैं जो फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन और नॉर्मल में मदद करती है। हियर एफ स्टैंड फॉर फोर्सफुल एंड एन स्टैंड फॉर नॉर्मल। तो चार मसल्स है, इंस्पिरेटरी, एक्सपिरेटरी, एक है आईआईसीएम इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, नेक्स्ट है एब्डोमिनल, थर्ड है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल एंड फोर्थ है डायफ्राम। ओके, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन। नाउ आईआईसीएम की बात करें, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, तो फोर्सफुल के अंदर, नॉर्मल के अंदर उसका कोई रोल नहीं होता है, फोर्सफुल के अंदर भी कोई रोल नहीं होता है। ओके, एब्डोमिनल की ना ही नॉर्मल में कोई काम होता है, ना ही इंस्पिरेशन के फोर्सफुल में कोई काम होता है। थोड़ा बहुत अगर जरूरत पड़ी तो एब्डोमिनल काम आ सकती है, वरना नहीं आती है। ईआईसीएम की बात करें, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, तो फोर्सफुल के अंदर काम आती है, नॉर्मल के अंदर भी काम आती है, डायफ्राम जो है दोनों के अंदर काम आती है। वहीं एक्सपिरेटरी मसल्स की बात करें तो फोर्सफुल में आईआईसीएम में काम आती है, पर एनआईएस फोर्सफुल में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल काम आती है बट नॉर्मल में नहीं आती। एब्डोमिनल फोर्सफुल में काम आती है बट एब्डोमिनल नॉर्मल में काम नहीं आती है, जबकि ईआईसीएम और डायफ्राम नॉर्मल में काम ही नहीं आते, फोर्सफुल में भी नहीं आते। तो इंस्पिरेशन इंस्पिरेटरी मसल्स जो हैं वो एक्सपिरेटरी के लिए दो हैं, इंस्पिरेशन में भी दोनों काम आते हैं। तो आईआईसीएम और एब्डोमिनल फोर्सफुल इंस्पिरेशन में भी काम आते हैं, फोर्सफुल एक्सपिरेशन में भी काम आते हैं। ओके, जबकि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और डायफ्राम सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल में काम आते हैं, इंस्पिरेशन में, नॉर्मल एक्सपिरेशन में काम नहीं आता है। तो एक टेबल दिया है, बस आपको देखना है। ओके, आईआईसीएम और एब्डोमिनल फोर्सफुल में, और फोर्सफुल इंस्पिरेशन और फोर्सफुल एक्सपिरेशन दोनों में काम आते हैं। ओके, डन। नाउ विल मूव फर्दर। अब हम वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज की बात करेंगे कि लंग में यूजुअली गैस कितनी होती है या कितना मिक्सचर होता है, कौन सी गैस का कैसा, उसको हमने एक कैटेगरी में रखा है जिसको वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज बोलते हैं। एक नॉर्मल होगा तो दूसरा फोर्स। वॉल्यूम्स के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, विल सी फर्दर। सबसे पहले आपको अपने को क्या करना है, चार वैल्यूज लर्न करनी है, सिर्फ चार वॉल्यूम्स लर्न करो। उसके बाद बाकी सारे अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे वॉल्यूम्स है लर्न करने के लिए, बट आपको सारे नहीं करने हैं। मैं जैसे ट्रिक्स के थ्रू करवाऊंगा वही करने हैं। सबसे पहले एक लंग बनाओ, उसके सबसे नीचे लेयर पे जो एयर रहती है उसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। आरवी स्टैंड फॉर रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब वो एयर जो हमेशा लंग्स के अंदर रहती ही है, दैट इज कॉल्ड एज रेसिडुअल वॉल्यूम। और उसकी वैल्यू कितनी याद रखनी है, 1200। रेसिडुअल वॉल्यूम कितनी है, 1200। उसके जस्ट ऊपर है एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ईआरवी, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वो आरवी के जैसे भी लंग्स में हमेशा रहती है, बट इसको हम फोर्सफुली रिलीज कर सकते हैं, बट रेसिडुअल वॉल्यूम को हम कभी भी रिलीज नहीं कर सकते हैं। ओके, मतलब एक बार छोटा बच्चा पैदा हो गया उसके बाद वो रेसिडुअल वॉल्यूम उसके मरने के बाद भी लंग्स में रहती है। तो कितना होता है वो, 1200 ml। जबकि ईआरवी जो है, जो खुद भी ईआरवी जो है, जो खुद भी यूजुअली प्रेजेंट रहता है लंग्स के अंदर, वो आरवी से 100 ml कम होता है। तो अगर आरवी 1200 है तो वो 1100 है, तो दो वॉल्यूम आपको लर्न कर लेनी है, एक 1200 है और एक 100 कम 1100। नाउ वी विल टॉक अबाउट नॉर्मल, जो हम विदाउट प्रेशर ब्रीदिंग लेते हैं, सांस अंदर सांस बाहर नॉर्मली, दैट इज कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम। व्हाट वी कॉल्ड इट, टाइडल वॉल्यूम, टीवी। एंड वो कितना होता है, इंस्पिरेशन का 500 एंड एक्सपिरेशन का 500। ओके, नेक्स्ट है आईआरवी। आईआरवी मतलब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम।
जैसे ERV था एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वैसे ही IRV है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। IRV कितना होता है 2500 ml, TB कितना होता है टाइडल वॉल्यूम 500 ml, ERV कितना होता है 1100 ml एंड RV कितना होता है 1200 ml। ओके, तो चार वॉल्यूम्स आपको सिर्फ याद रखनी है। रेसिडुअल वॉल्यूम 1200, फोर्सफुल एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1100, टाइडल वॉल्यूम 500 नॉर्मल एंड फोर्सफुल इंस्पिरेशन 2500। तो दो वॉल्यूम हो गए, एक नॉर्मल इंस्पिरेशन 500 जिसको टाइडल इंस्पिरेशन बोलेंगे, और एक फोर्सफुल इंस्पिरेशन जो हम डीप इंस्पायर करते हैं वो 2500। एक नॉर्मल हम सांस छोड़ते हैं बाहर, दैट इज 500, ठीक है टाइडल। और एक हम फोर्सफुली सांस बाहर छोड़ते हैं, दैट इज ERV। और एक वॉल्यूम है नॉर्मल जो बची हुई रहती है लंग्स में हमेशा, रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ये चार वॉल्यूम्स आपको अगर याद हो जाएंगी तो अपने आप इसकी कैपेसिटीज रिमेम्बर रहेंगे। अब वॉल्यूम्स मिलके क्या बनाता है कैपेसिटी, टू और मोर वॉल्यूम्स आर मिक्स टू फॉर्म कैपेसिटीज। Two or more than two volumes are mixed to form capacity. Now, कैपेसिटीज में सबसे पहले कैपेसिटी हमने रखा है फंक्शनल कैपेसिटी, या FRV भी बोलते हैं, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, FRC। तो फंक्शनल कैपेसिटी का फॉर्मूला है, अगर मैंने बोला ये चार वॉल्यूम्स याद रहेंगी तो सब हो जाएगा। फंक्शनल कैपेसिटी का मतलब होता है कितना एयर नॉर्मली लंग्स में बचा रहता है यूजुअली। तो एक तो रेसिडुअल वॉल्यूम बचा रहता है लंग्स में हमेशा, और साथ में दूसरा उसके ERV जो मैंने बोला कि वो भी यूजुअली भरा रहता है, बट आप फोर्सफुली उसको रिलीज कर सकते हो ना। उसका फॉर्मूला हो जाएगा RV प्लस ERV। तो उसका फॉर्मूला RV प्लस ERV, तो RV होता है 1200 एंड ERV होता है 1100, टुगेदरली दे फॉर्म 2300 ml। कितना हो जाता है 2300 ml फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इतना लंग्स में यूजुअली एट अ टाइम प्रेजेंट रहता है अगर लास्ट टाइम एक्सपिरेशन नॉर्मल रही हो। अगर एक्सपिरेशन फोर्सफुल रही हो तो देन सिर्फ रेसिडुअल वॉल्यूम रहेगा, ERV एक्सक्रीट हो चुका होगा। ओके, TLC जो है वो टोटल लंग कैपेसिटी है, दैट इज 6 लीटर। हाउ मच इट इज 6 लीटर। या आप टेक्निकली भी लर्न कर सकते हो 6 लीटर होता है, जैसे ब्लड 5 लीटर होता है वैसे ही टेक्निकली हमारा जो एयर होता है लंग्स के अंदर वो टोटल कैपेसिटी 6 लीटर की होती है। उसके ऊपर वो बहुत रेयरली एडजस्ट कर सकती है। हाँ, एथलीट्स की, जो बॉडी बिल्डर्स हैं, जो स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, दे हैव हायर टोटल लंग कैपेसिटी 6.5 to 7 लीटर, बट नॉर्मल केस में यूजुअली 6 लीटर होता है। ओके, तो आज इतना ही देखेंगे। विल सी द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। एक बार घर पे इतना रीड कर लेना प्लीज। और कल की क्लास में मैं कॉकरोचेस के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ओके, बिफोर योर विंटर हॉलीडेज वी विल एंड इट विथ कॉकरोच क्वेश्चंस। ओके, प्लीज रीड इट। थैंक यू।